गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मन थापा। तो आज जो है मैं आपके सामने एक नए बेहतरीन स्टॉक के बारे में जो है डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। तो इस कंपनी का जो नाम है, इसका नाम है वारे एनर्जीज। तो वारे एनर्जीज के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। तो वारे एनर्जीज Q1 फाइनेंशियल 2026 रेवेन्यू जंप्स अबाउट 31% ईयर ऑन ईयर while profit nearly double. Could this solar module giant will be your next term long term wealth creator? Let's discuss. India's Waaree Energies is the country's largest solar PV module manufacturer with a strong export footprint. However, the recent US trade probe has news has recently added a near of uncertainty to its global expansion story. In the next few minutes, I will show you why this stock could be a bright spot in India's renewable push and the key risk to monitor. Let's dive into how Waaree Energies makes in its money. So, business model. Founded in 1990, Waaree Energies has become one of the India's most prominent solar PV module maker. The company produces mono and multi-crystalline modules, including advanced TOPCon and bifacial technologies. Its core business comes from a solar module manufacturing, both of domestic installation and exports across several international markets. Waaree also has emerging vertical in battery energy storage and solar cell manufacturing, helping it moves further up renewable energy value chain. The company operates five major manufacturing facilities across India with a combined installed capacity of 12 gigawatt and is expanding aggressively to meet up further demands. A significant portion of its revenue now comes from export, making it a global player in a solar ecosystem. Now let's discuss the pipeline. In Q1 financial year 2026, Waaree Energies reported consolidated revenue of 4,597 crores, up around 31% year on year, while the profit after tax surged 92.7% to 745 crores. For the full year financial year 2025, the company recorded 14,846 crores revenue, a 27.6% year on year increase, and 1,932 crore in net profit, more than doubling from the previous year. It currently maintaining an order book worth approximately 49,000 crores, reflecting a strong demand visible over the next few years. This massive pipeline indicates a steady revenue flow and rising global recognition for India-made solar modules. Now let's discuss the sector growth. The global solar energy industry is one of a strongest growth phase ever. India's renewable transitions, government support, through product-linked incentive schemes and global supply chain diversification away from China are all driving momentums. Demand for solar installation is increasing from multiple fronts: industrial rooftops, commercial building, residential houses, and large-scale solar panels. Waaree Energy is also eyeing global market with a plan to set up a manufacturing unit in Texas, USA to cater to North America demand. The company's integration, operation, and scale advantage give it a strong competition edge over smaller players. Now let's discuss on a future prospect. Waaree Energies has guided for an financial year 2026 EBITDA in a range of 5,500 to 6,000 crores, supported by capacity expansion and backward integration into solar cell and wafers. The company reproduced 7.13 gigahertz of modules in financial year 2025, up from 4.77% gigawatt in financial year 2025, showing a rapid growth in production scales. Going forward, Waaree plan to expand further into energy storage and upstream manufacturing, while could help improve margin and reduce reliance on import components. With the India's solar mission and global renewable target aligning, the company is strategically positioned for a continued growth. Now let's discuss about the risk and challenges. Despite the strong growth, the Waaree Energy faces a notable risk. The ongoing US trade probe into a possible tariff aviation has created a near-term sentimental pressure. The company also faces raw material price risk, particularly for polysilicon and wafers, which can affect margin as well. Competition is intensifying both domestically and globally, while the high export dependencies expose it to currency fluctuation and geopolitical uncertainty. Investors should also watch for regular shifts in trade policies and solar manufacturing incentives that could impact the profitability as well. Now let's discuss on the fundamentals. So Waaree Energies has a market capitalization of 94,237 crores, whereas the enterprise value is 89,394 crores. It means कि इसके पास में जो है काफी जो है फ्री कैश भी पड़ा हुआ है। ठीक है, इंडस्ट्री का जो पीई जो है वो 35 है और इसका पीई जो है वो 34.9 है। इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। करंट प्राइस जो है 3,276 है और इसकी जो इंट्रिंसिक जो
वैल्यू है दैट इज 3293, तो उसके बिल्कुल पास में ट्रेड कर रहा है, बल्कि इंट्रिंसिक वैल्यू से हल्का सा कम प्राइस में वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। आरओसीई और आरओई जो है बहुत ही बेहतरीन है, 34.9 एंड 27.4, विच इज़ बेस्ट इन द इंडस्ट्री। इसके बाद में जो है इसकी फेस वैल्यू 10 की है, नंबर ऑफ शेयर्स 28.8 करोड़ हैं। उसके बाद में प्लेजिंग परसेंटेज 0 है, डेट टू इक्विटी ना के बराबर है 0.26, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 17 टाइम्स है, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड। उसके बाद में सी एफ ओ बाई पैट जो है वो 225% है, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड। उसका प्राइस ऑल टाइम हाई जो है वो 3865 के आसपास पे बनाया था, अभी ऑल टाइम हाई से जो है मात्र 15% डाउन चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा ऑल टाइम हाई से नीचे गिरा हुआ नहीं दिख रहा है हमें। लेकिन ये जो है इसकी स्टॉक की जो वैल्यूएशन है, इसका जो ग्रोथ है वो एक काफ़ी बेहतरीन है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 8.2 है, जबकि इंडस्ट्री का 5.5 है, तो इंडस्ट्री के प्राइस टू बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है। इसका रीज़न यही है कि इसमें जो ग्रोथ एक्सपेंशन जो है काफ़ी रैपिडली करा है। पार्टरिस्टिक स्कोर जो है वो 6 है आउट ऑफ 9, विच इज़ अगेन वेरी वेरी गुड। अब जो है ये जो स्टॉक की जो लिस्टिंग जो हुई थी वो मैं अगर आपको दिखाऊं तो वो 2024 अक्टूबर में हुई थी, तो ऑलमोस्ट जो है हम एक साल के आसपास में इसका जो है हम देख चुके हैं एक साल में कैसा मूवमेंट कर रहा है। तो दैट स्टार्टेड विद 2338, तो उसकी काफ़ी ऊपर की मूवमेंट हुई थी जो कि 3600 के आसपास में गया, फिर ये डाउन आया है, डाउन होकर ये 2200 के आसपास में गया था, फिर ये इसने अपर बैंड जो है वो टच करके 3700 के आसपास का लेवल टच करके फिर जो है अभी नीचे आया हुआ है, और इसको टेक्निकली ये जो है हम अभी डिस्कस भी करेंगे। पी रेशो जो है हमें 3 साल और 5 साल का देखने को नहीं मिलेगा, तो हम एक साल का अगर पी रेशो देखें तो अपना जो इसका जो मीडियन पी जो 45 के आसपास में रहता था, 43.4 के आसपास में, वो जो है अभी 35 के आसपास में है, तो काफ़ी बेहतरीन इसको माना जाएगा। वहीं पर ही एज वेल एज अगर मैं जो है इसको प्राइस टू बुक से भी अगर मैं कंपेयर करूं तो जो इसका एक साल का प्राइस टू बुक वैल्यू मीडियन जो 9.4 जो रहता था वो अभी 8 के आसपास में मीडियन में आया हुआ है, और ये जो है अभी जो है इसका जो है अपने लोएस्ट जो इसने लास्ट टाइम जो इसने मीडियन जो बनाया था वो भी जो है 7.9 के आसपास में था, तो उसी के आसपास के मीडियन के पास में जो है हमें ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। प्रोज एंड कॉन्स ये हैं कि कंपनीज जो है ये गुड रिटर्न्स जो है एक्सपेक्टेड है आने वाले टाइम में। कंपनी हैज डिलीवर्स अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 113% CAGR, विच इज अगेन ह्यूज ओवर द लास्ट 5 ईयर। कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, लास्ट 3 साल का अगर देखें तो 30.7 है, विच इज़ अगेन गुड। कौन सी है कि स्टॉक जो है वो काफ़ी प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है, 8.2 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू इज़ हाई, बट अगर हम इसको अपने कॉम्पिटिटर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो अब अगर हम यहाँ पे पीयर कंपैरिजन करें तो ये हमारा वारे एनर्जीज जो है ये पहले नंबर में आ गया, जो कि अपने इस सेगमेंट में जितने भी जो ये जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर हैं इसमें जो है वन ऑफ द बिगेस्ट है, 94,236 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, विच इज़ ह्यूज, अपने आप में सबसे बड़ा है ये। इसके बाद में यहीं पर ही अगर हम इसको कंपेयर करें जो इसके पीयर से हैं तो इसका करंट प्राइस टू बुक वैल्यू अगर मैं देखा जाए तो 8.2 है। इसमें सबसे सस्ता जो है हमें देखने को अपार इंडस्ट्रीज मिल रहा है 6.85 के आसपास में। इसके बाद में जो है विक्रम सोलर भी जो है सस्ता है, ये काफ़ी सस्ता देखने को मिल रहा है, और जीनस पावर भी जो है 5.75 के आसपास में मिल रहा है। तो ये चौथे नंबर में हमें यहाँ पे ट्रेड करने को मिल रहा है एज पर बुक वैल्यू। लेकिन अगर हम जो है सेल्स के हिसाब से अगर मैं इसको देखूँ तो सेल्स जो है इसने जो है लास्ट 3 साल में जो है 71% के हिसाब से CAGR के हिसाब से ग्रोथ करा हुआ है, विच इज़ अगेन ह्यूज। अगर इसके कॉम्पिटिटर को देखा जाए तो प्रीमियर एनर्जी भी 106% CAGR से ग्रोथ करा है, वारे रिन्यूएबल जो है वो 114% के हिसाब से ग्रोथ करा, तो ये थर्ड नंबर में यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अब हम आ जाते हैं आर ओ सी जो है इसका बेहतरीन है 43.48। वहीं पर अगर इसका कॉम्पिटिटर देखे तो वारे रिन्यूएबल जो इसी की सब्सिडरी है वो जो है 88% ROC में ट्रेड कर रहा है, जो कि फर्स्ट नंबर में है। तो सेकंड नंबर में जो है वारे एनर्जीज यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर हम ROE को देखें तो फर्स्ट नंबर में जो है वो अगेन वारे रिन्यूएबल 74% CAGR के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है लास्ट 3 सालों में। वहीं पर ही जो है इसका मीडियन बना हुआ है, वहीं पर ही जो है इसका प्रीमियर एनर्जी का मीडियन अगर हम देखें 3 साल ROE जो है इसका जो है 42 पॉइंट के आसपास में आ रहा है, और थर्ड नंबर में जो है अगेन वारे एनर्जीज आ रहा है जो कि 30.72 के आसपास में हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम ऑल टाइम हाई से अगर हम देखें तो ये जो है वारे रिन्यूएबल जो है 61% टूटा हुआ है, लेकिन अगर आप वारे एनर्जीज अगर आप देखेंगे तो वो मात्र 15% टूटा हुआ है। तो इसको जो है हम कहेंगे ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइजेस जो है यहाँ पे ये हमें देखने को मिल रहा है।
क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये ऑल टाइम हाई के पास में है। सितंबर 2025 में 6066 करोड़ का बिजनेस करा है और वहीं वहीं पे जो है ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट इसने करके दिया है 878 करोड़ का, जो कि सितंबर 2025 में है। ये जो है हम जो है क्वार्टरली हम इसको देख रहे हैं। वहीं पर ही अगर हम इसको ईयरली देखें तो जितने भी जो साल हैं लास्ट 4 ईयर्स के में अगर हम कंपेयर करें तो ऑल टाइम हाई 17,953 करोड़ का रेवेन्यू करा है। लास्ट 2025 में 14,444 करोड़ का करा था, 2024 में 11,400 करोड़ का और 2023 में जो है 6,700 करोड़ का बिजनेस करा था। वहीं पर ही जो है 12 ट्रेलिंग मंथ में जो है ऑल टाइम हाई प्रॉफिट करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि 2,802 करोड़ का है। 2025 में जो है इन्होंने 1,928 करोड़ का करा था और 2024 में जो है 1,274 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट करा था। अभी जो है ऑल टाइम हाई प्रॉफिट के पास में हमें देखने को मिल रहा है और 15% जो है वो ऑल टाइम हाई से डाउन है। और ये जो है हमें टेक्निकली भी काफ़ी साउंड लग रहा है। टेक्निकल एनालिसिस भी हम जो है क्विकली आपके सामने करेंगे। कंपाउंडेड अगर सेल्स ग्रोथ अगर 10 साल का देखा जाए तो वो हमें नहीं दिखा रहा है। 5 साल में 49% का ग्रोथ करा हुआ है। प्रॉफिट जो है वो 113% से ग्रो करा हुआ है। 3 साल में सेल्स जो है 72% से ग्रोथ करा है। प्रॉफिट जो है 191% से ग्रो करा है। और वहीं पर ही सेल्स ग्रोथ लास्ट 12 ट्रेलिंग मंथ पे 56% से, प्रॉफिट ग्रोथ 139% से और स्टॉक का प्राइस जो है वो मात्र 5% से मूवमेंट करते हुए हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है लास्ट 5 ईयर, 3 ईयर और लास्ट ईयर का अगर हम एवरेज देखें तो 5 साल में 30, 3 साल में 31% और लास्ट ईयर में 27% का हमें रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट जो है काफ़ी बेहतरीन है। इक्विटी कैपिटल जो है इसका 288 करोड़ का है। रिजर्व जो है ये कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहे हैं। 2024 में 3,800, मार्च 2025 में 9,000 करोड़ और सितंबर 2025 में जो है हमें 11,000 करोड़ का रिजर्व हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। CWIP भी जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। लास्ट 2024 में जो है इन्होंने 1,300 करोड़ रुपए लगाए थे अपने बिजनेस में। 2025 में इन्होंने 1,884 करोड़ लगाए हैं और 2025 में भी जो है इन्होंने 1894 करोड़ रुपीस का जो है इन्होंने CWIP यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद में वहीं पर कैश फ्लो अगर देखेंगे तो जैसे हमने CFO बाय पैट देखा था वो बेहतरीन है। आप जो है लास्ट 3 साल का अगर डेटा देखेंगे तो 2023 में 1,500, 2024 में 2,300 और 2025 में जो है 3,100, 158 करोड़ रुपीज़ का ऑलरेडी जो है ये कैश में कन्वर्ट इतने को कर चुके हैं अपने नेट प्रॉफिट में से। डेटर डेज जो हैं वो रिड्यूस हुआ है, 31 से 30 हुआ है। इन्वेंट्री डेज भी रिड्यूस हुए हैं, 108 से 96 में पहुंचा है। डेज पेबल जो है वो हल्का सा बढ़ा है, 84 से 91 डेज। कैश कन्वर्सेशन साइकिल ओवरऑल देखा जाए तो 55 डेज रिड्यूस होकर 35 में हुआ है, जो कि ये लास्ट ईयर 2023 में 66 डेज का होता था। तो ये इसमें काफ़ी बड़ा शिफ्ट आ रहा है, रिक्वायरमेंट अच्छी आ रही है। वहीं पर ये ROC जो है 52, 44 एंड 35% के आसपास में हमें ROC देखने को मिल रहा है लास्ट 3 सालों का डेटा अगर मैं आपको बताऊं तो। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो काफ़ी बेहतरीन हमें देखने को मिल रही है। 64.31% जो है दिसंबर 2024 में जब इसका IPO आया था तो वहाँ से जो है सेम हमें देखने को मिल रहा है 64.22 के आसपास में। लेकिन यहाँ पे अगर आप FII का देखेंगे तो जो दिसंबर 2024 में 1.4% की जिनकी होल्डिंग होती थी वो अब बढ़ के जो है 6.35% हो गई है। इसका मतलब FII जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है इसमें। और वहीं पर DII का जो परसेंटेज 2.7% का जो रहता था वो बढ़ के जो 2.8% हुआ है। तो DII के भी इंक्रीज हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। ऑल्दो जो है कुछ ना कुछ इसमें शिफ्टिंग जरूर हुई है। पब्लिक का जो इंटरेस्ट जो रहता था 31% की जो होल्डिंग जो थी वो बढ़ के 32% हुआ था, अभी घट के जो है वो 26.6% हो गई है। और यहीं से जो है FII ने जो है यहाँ से काफ़ी जो है भर भर के माल यहाँ पे खरीदा हुआ है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे कंपनी के अनाउंसमेंट, एनुअल रिपोर्ट, क्रेडिट रेटिंग एंड कॉन कॉल को आपको डेफिनेटली गो थ्रू करना है। अब जो है हम मूव करते हैं, लेट्स मूव टू देयर टेक्निकल एनालिसिस। तो दोस्तों ये टेक्निकल एनालिसिस में मैंने एक दिन का चार्ट लगाया हुआ है। जब से कंपनी की शुरुआत हुई थी तब इसने जो है एक एक जो है अपवर्ड इसने चालू करा था। जो स्टॉक जो 2,300 का जो था वो बढ़ के जो है वो 3,700 के आसपास में गया और वहां से एक जो है फिर डाउनवर्ड चालू हुआ था। वहां से फिर एक अपवर्ड चालू हुआ, उसके बाद फिर से डाउनवर्ड चालू हुआ है। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो इसने जो है एक रैली ऊपर की तरफ दी थी जो दिसंबर 2024 में जो दी थी, वहीं पर ही जो है एक आके जो है इसने फिर से डाउन लेके यहाँ पे एक जो है कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे बना के इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है इसके पास में यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसने ऑल टाइम हाई यहाँ पे बनाया था 5 नवंबर 2024 में। उस ऑल टाइम हाई को यहाँ पे जो है यहाँ पे ये ब्रेक नहीं कर पाए, बल्कि थोड़ा सा एक डे सेशन में हल्का सा ब्रेक करके फिर ये नीचे आ गया और यहाँ पे फिर से जो है एक आपका जो है यू टर्न, एक जो है कप एंड हैंडल पैटर्न बन गया। ये जो है एक छोटा कप एंड हैंडल पैटर्न बना है और ये जो है ये यहाँ से एक बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। तो ये जो है कप एंड हैंडल पैटर्न का जो है अगर आप इसका जो है अगर आप मैं जो है अगर इसका ये देखूं कि कितना जो है यहाँ से जो है और मूवमेंट जो है ये हो सकती है। तो यहाँ से जो दोस्तों अभी अगर ये जो है यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है
और ब्रेकआउट देने के बाद में जब ये रैली चालू करेगा तो आने वाले टाइम में जो है ये 5,526% के आसपास में जो है यहाँ पे जा सकता है, जो कि यहाँ से 50% की रैली है। ये आने वाले 1 2 3 4 सालों में जो है ये टारगेट जो है डेफिनेटली अचीव हो सकता है। कंपनी अच्छी है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है और टेलविंड इसमें चल रहा है। कंपनीज जो हैं सारी इसकी तरफ मूव कर रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो सोलर पैनल के ऊपर जो है वो जा रही हैं। रेजिडेंशियल में बहुत सारे लोग जो हैं सोलर पैनल लगा रहे हैं। गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा पुश है, गवर्नमेंट के बहुत सारे इंसेंटिव्स प्लान्स हैं जो इनको जो है डेफिनेटली एक एज प्रोवाइड कर रही है, और ग्रोथ में जो है इनका जो फ्यूचर ग्रोथ है वहाँ पे जो है ये टेलविंड की तरह काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पुश कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आज हमने कंप्लीट एनालिसिस करी है वारे एनर्जीज की। इसकी जो सब्सिडी कंपनीज है उसको, एक सब्सिडी कंपनी को हमने ऑलरेडी भी डिस्कस करा था, उसके वो भी एक अच्छी कंपनी है, वो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो भी आप डेफिनेटली गो थ्रू करिएगा। मेरी वीडियोस को शेयर, लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, आपकी कोई इंक्वायरीज है, अगर आप चाहते हैं कि कोई स्टॉक को जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल में जो है वो कवर करूँ तो डेफिनेटली जो है आप उसको टैग करिएगा। अगर मुझे लगे कि वो कंपनी वर्थ है तो मैं डेफिनेटली जो है उसका जो है एक वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज अगर उसमें कुछ आपके क्वेश्चंस है तो वो भी मैं रिवर्ट करने की जो है पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आई एम साइनिंग ऑफ दिस साइड मन थापा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक। टेक केयर, बाय बाय।